ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਬੋਡੀ weight ਸੀ ਮੇਰਾ 8 kg ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ, ਮੇਰਾ weight 56 ਜਦਕਿ 56 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ weight ਸੀ 65। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਮਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 14 kg weight ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ weight ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਪੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਅਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਗੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਗੋਲ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਗੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਟ 25 ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ 35 ਕਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ weight ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਗੋਲ ਹੈਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਵਰਨਪਾਲ ਸੇਖੋਂ ਦਾ, ਕੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂਗੀ, ਹੁਣ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 20% ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 80 ਐਂਡ 20 ਦਾ ਰੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ 100% ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਬੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਕੌਣ ਰੈਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਕਆਊਟ ਲਈ? हैंड वेव कर दो जो रेडी है। ओके, अपनी पोजीशन ले लो प्लीज, क्योंकि बैठ के कोई वर्कआउट नहीं होता हैगा। तुसी सारे अपनी पोजीशन ले लो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਕਆਊਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Muscle involved for everybody. Come on, everybody, let's walk. You ready, guys? Oh, yeah. I got my walkers with me. Here we go. All right, 4 easy steps are our program. So let me show you how to do it. This is our warm-up. We walk in place, just an easy march. I find the pace, that beat is absolutely part of the workout. It's what I follow, so I'm sure I can give you a great aerobic workout. Okay, it's walk, 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 walk. Side steps are coming up next. Side steps. Ready? Step out to the side. It's out together, out together. Good. So this is one of our basic steps. We use it a lot. We add on to this. From this single, we go to doubles. We go to fours. Don't worry. I know you can do it. If you can do this. Step out together, out together. 2 more, guys. Here's 1. Here's 2. Back to walking. We always go back to walking. That's why it's so wonderful to follow. If there's a step you don't like, go back to walking. Just keep moving. Hey, guys, kicks are coming next. 4 and 3 and 2. So from this side, all I want to do is kick. Just raise any leg. Kick it straight out. I want you to think about your core being tight and strong. Belly button goes back towards your spine. That's how you stay long. Don't tip back. Good. Stay tall. Flat tummy. All you do is kick and kick. Okay, back to walk, and walk. One more step is the core of the program. There are knee lifts.
the whole program. No problem. 4, 3, 2, walk, 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 walk. And you see how already the body gets warm, the body temperature is going up. The muscles warm up, your joints start to get a little juice in it so you feel good in that big range of motion. Hey guys, raise up upper body, we'll warm it up a little bit. Just reach up, reach up, reach up, reach up, reach up. Nice, extend all the way up, warm up the upper body. 2, 3, 4. Everybody needs to take a fitness walk. You're doing it right now. Reach and reach. Last time, reach up high. Good. Now power walk, guys. Up your arms. Oh, yeah. Nice job. Going back to side steps. Ready? Step out to the side. It's out together, out together. Bring the elbow around. Come on, shoulders. Wake up, warm up. Yeah, the first few minutes is a little bit of a warm up. Get you ready for a faster pace. But I can tell you, even the warm up has a little pop to it. You're moving. Nice. Nice, everybody. Walk, 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 walk. All right, we're going to move around a little, guys, okay? 2 up, 2 back. If you have room at home, so I love you to stretch out. Move the coffee table, move the furniture. It's worth it. You put all those muscles in motion. And 4, and 3, and 2. Okay, 2 counts forward. 1, and 2. Back up, and 1. Yeah, there goes my gang. They're clapping. We're clapping. 1, and 2. And back, and 2 more. So good. I'm so glad you're walking today. This is the day to start. You'll feel so good. Your head will feel good. Your whole body feels good. Last time up. And back. Stay right here, guys. Tap out coming. Tap out. Tight tummy. Here comes the tap. Tap out. Tap out. Sit down into it, guys. Sit down in. All right, follow the beat. Follow it. That's it. Nice. Can you feel your heart rate coming up? Yeah? Yes. So it only takes a few minutes. You're doing fitness walking. Keep going. Tammy, go, Tammy. Wendy, it's fitness walking. All those muscles in motion. Nick. Oh, yeah. Tight tummy, honey. Strong arm. That's Extend it. the legs. You got it. All muscles in motion, say. I love it, honey. I love when we're walking together. I love to walk. I love to walk. Woo! Hey, guys, back to the beat we're walking. Walk to the beat. That's what gets us fit. So if any of the movements are a little, you're still trying to get used to them. Go back to walking. Walk to the beat. That's what gets you fit. It's not the movements. It's the beat. It's the pace. Blow out that air. We're going to change speeds a little wee bit. We got to go faster, a little faster. Walk, walk, walk. I love when they're happy. I love it. Hey, double side step. 4, 3, 2. Step out 2 times. Out together, out together, out together, out together. Here we go, Art. Go. Go. Go, 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 go. Come in, guys. You're right on him. Thank you, sweetheart. You're a beautiful walker. You're a beautiful walker. Woo! Love it. Go, honey. Together, out together. Yes. Come on, right. Hey. Marvin, go, Marvin. Yes, honey. Do I know you? Are you my buddy? Better believe you are. Oh, for sure already. You're around, honey. Over. Okay. 1 more time. Come on. Got it. Walk, 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 walk. Walk. Nice. Upper body. Reach high. Reach high. Extend those arms all the way to heaven. Come on. Reach. 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 Tight tummy. I want you to always think about that core engagement so you're strong. Move with power when the tummy is flat. 4, 3, 2. Arms are down. Yeah. Power walk. Oh, my goodness. Woo. Yeah. Walk, 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 walk. 4 counts up, 4 counts back. Ready? We're going. 4, 3, 2. Back it up. 4, 3, 2. Come up. 4, 3, 2. Back it up. 4, 3, 2.
ਓਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੂਅਰ ਸੀਟਸ ਇਸ 80 ਐਂਡ 20 ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਕਮ ਔਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड अच्छी जी क्लैपिंग करते सब अपने लिए बहुत लकी हैं कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हर सो रंग ये सब भगवान की कृपा है जो हमें ये सिस्टम मिला है इतना अच्छा हमें खाना मिला है इतनी अच्छी हमें कम्युनिटी सपोर्ट मिली हुई है इतनी अच्छी सेहत मिल गई है और जो जिंदगी में चाहते थे सब मिल गया है ये भगवान की बहुत कृपा हो रही है इसके लिए एक बार फिर से क्लैपिंग कर दो अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दो अगर हमारे कोच ना होते तो आज हमारे पास सब कुछ ना होता ये सेहत ना होती एंड मुझे लगता है कि मैं तो 200 किलो का होता अगर मेरा कोच ना मुझे मिलता और शायद मैं बेड पे होता हो सकता है मैं दुनिया में ना होता तो कोच का बहुत बड़ा रोल है इसमें एंड नए लोग बहुत ज्वाइन हो रहे हैं आपका वेलकम है पहली बार किसने ज्वाइन किया है या 2-3 दिन में जो ज्वाइन हुए हैं वेरी गुड इनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो सब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप यहाँ आप दिल लगा के बैठोगे और कैमरा ओपन रखोगे और विश्वास रखोगे जो यहाँ से आपको सिखाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करोगे नोट्स बनाओगे तो आपकी जिंदगी चेंज होनी तय है हमारी भी जिंदगी इधर से तय हुई है आने वाले 30 दिन में आपको सब पता चल जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है वॉल्यूम क्या होते हैं सप्लीमेंट्स क्या होते हैं क्यों लेने हैं सारे आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड अगर आपने 10 महीने यहाँ पे लगा दिए फिर तो आपकी जिंदगी टोटली चेंज है पूरे खानदान में आपसे सुंदर आपसे अमीर रिच कोई नहीं होएगा और अगर आपने 3 महीने यहाँ पे लगा 3 साल यहाँ पे लगा दिए फिर तो आप दुनिया पे राज करने वाले आपकी आने वाली जनरेशन यहाँ पे राज करने वाली है क्योंकि आने वाले 3 साल में दुनिया बहुत बीमार होने वाली है क्योंकि हमारी जो खेती है वो जहर हो चुकी है हमारा पानी जहर हो चुका है एंड हमारी मार्केट जहर हो गई है कल ही खबर आई है कि 3 में से 2 लोग जो है वो सर्फ वाला दूध पी रहे हैं डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं लोग ये ऐसी तो हमें सप्लाई आ रही है हम बहुत ज्यादा ना सियाने हो गए हैं मतलब आज से हजारों साल पीछे जाओ तो लोग बहुत भोले थे पत्ते पहन लेते थे सिंपल खाना खाते थे फिर धीरे धीरे लोग सियाने हो गए एंड कपड़े आ गए मार्केट में बहुत अच्छा हो गया लेकिन अभी जो लोग हैं ना वो लालची हो गए हैं ग्रीडी हो गए हैं वो अपना मतलब घर संभालने के लिए अपने बच्चे पहनने के लिए दूसरे के बच्चों को मार देते हैं ऐसा खाना लोग तैयार करके बेचते हैं जो बाजार में चाय बिक रही है उसमें सारा डुप्लीकेट दूध है और चावल डुप्लीकेट आ गए हैं एग डुप्लीकेट है मतलब क्या करेंगे हम लोग कैसे बचेंगे हम लोग एक मुझे पंक्ति याद आ रही थी वो है कि माया डर डर पत हार गुरुद्वारे जाइए ताहा जो व्यापे माया कहाँ ठहराई है मतलब हम माया के प्रभाव से बचने के लिए धार्मिक स्थान में जाते हैं अगर वहां पे भी यही माहौल है तो हम कहाँ जाएंगे अगर एक माँ ही अपने बच्चे को मारना चाहती हो तो उसे कौन बचाएगा अगर एक खेवर जो है जो कश्ती को चला रहा है उसमें 500-700 लोग बैठे हैं उसकी शिप में अगर वो उसी को डुबोना चाहता है तो उसको कौन बचाएगा तो ये माहौल बन चुका है थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है जैसे हमने अपने आप को बहुत चेंज किया है हमारे कपड़े बहुत ब्रांडेड हो चुके हैं हमारे जूते ब्रांडेड हो गए हमारी गाड़ियां ब्रांडेड हो गई हमारे फोन चेंज हो गए हैं तो हमें अपना खाना पीना भी चेंज करना है हमें इसी बात को समझना यही पे प्रॉब्लम है लोग पूछते हैं कि सर क्यों चेंज करें हम सप्लीमेंट्स क्यों लें हमारे दादा दादी नाना नानी तो लेते नहीं थे वो तो घर का खाना मतलब घी पी जाते थे रोटियां खाते थे भाई साहब उनका जो लाइफस्टाइल था ना बहुत बढ़िया था हार्ड वर्कर थे उनके हाथ में औजार होते थे आपके हाथ में क्या है या तो स्मार्टफोन है या आपके हाथ में रिमोट है या लैपटॉप हमारे हाथ में है हमारा वो स्टाइल नहीं है और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा दादा दादी जी मोमोज नहीं खाते थे पिज्जा नहीं खाते थे उनके पास ये सिस्टम नहीं था वो घर का ही खाना खाते थे हमारी खेती थी उसमें न्यूट्रिशन थी बहुत ज्यादा आज न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो चुकी है ये छोटे छोटे अगर पॉइंट्स आपको समझ आ गए और आपने अपना खाना पीना सेट कर लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 फायदे होंगे आपका टाइम भी बचेगा आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी बॉडी भी लंबा चलेगी एंड आपकी सेविंग होगी आपके पैसे भी बचेंगे
वो कैसे? जो पैसे हमने बाद में लाखों करोड़ों रुपए इस बॉडी को ठीक करने पे लगाने हैं या अपनी फैमिली पे लगाने हैं, वो सारे बचेंगे अगर आप सिस्टम के साथ प्लग इन हो गए, आपको सिस्टम समझ आ गया। ओके, तो इस बात के लिए क्लैपिंग कर दो। तो मैं 1 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा आपको। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं भी आप लोगों में से निकल के बाहर आया हूं। मैं भी आपकी तरह था। मैं भी उसी रेस में था जहां पे लोग सोचते हैं कि हमें पैसा बहुत कमाना है और हमें तरक्की बहुत करनी है, बच्चों को बाहर भेजना है, कुछ ऐसे हमारे ख्याल से दुकान को बड़ा करना है, बड़े बड़े ब्रांड रखने हैं, ऐसे सपने थे। सेहत को लेके कोई हमारा विचार नहीं था। सेहत की कोई बात करता, हम कहते टाइम नहीं है हमारे पास, सेहत की बात मत करो, और की बात करो, पैसा कैसे आएगा ये बताओ। ओके, ये हमारी सोच थी। एंड सब कुछ हमने प्राप्त किया, बहुत मेहनत की। मैंने कम से कम 30 साल अपने फादर के साथ मिलकर मेहनत की। पहले हमने रेडियां लगाई थी, फड़ियां लगाई थी, फिर हमने एक शॉप ले ली किराए पे, फिर उसको हमने परचेज कर लिया शॉप को, फिर हम उसको बड़ा किया, साथ वाली जगह मिल गई, बहुत कुछ किया जिंदगी में। एंड सारा कुछ करते 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 एक गलती करके कि हमने अपना खाना पीना कंट्रोल में नहीं रखा, अपना खाना पीना सही नहीं किया। उस वजह से पहले मेरे ताया जी पूरे हो गए, उनको शुगर थी, वो डायबिटिक थे, उनके पैर कटे, उनकी टांग कटी, उसके बाद इन्फेक्शन हो गई, उनकी डेथ हो गई। फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, वो भी डायबिटिक थे और उनको किडनीज की प्रॉब्लम आई, उससे उनको कार्डिक प्रॉब्लम हो गई और उनको अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। फिर वही प्रॉब्लम मेरे में आ गई। तब मेरी एज जो थी 48 की थी और मुझे लगता था कि मैं अभी 1-2 साल ही और जी पाऊंगा, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। डॉक्टर भी बोलते थे कि आपका वेट बहुत ज्यादा है एंड बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम हो चुकी हैं, लिवर फैटी हो गया है, कार्डिक प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता था। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, हम सर गंगाराम में थे, तो उनके डायलिसिस हो रहे थे, तो उनकी ब्लड की जरूरत पड़ी। मैं दिल्ली में था अकेला उनके साथ, तो डॉक्टर ने बोला कि सर ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, पापा को ब्लड की जरूरत है आपके। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं हूं ना, अब मेरा लो ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझे ब्लड रूम में ले गए। वहां पे एक नर्स ने मुझे 15 मिनट सुइयां चुभोई यहाँ पे मेरा ब्लड लेने के लिए। ब्लड बाहर ही नहीं आ रहा था, मतलब मेरे साथ वाले ब्लड देके चले भी गए और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था और मैं इतना इरिटेट हो रहा था, इतनी पेन हो रही थी कि हो क्या रहा है, ये लड़की अनजान है। जब जब बड़े डॉक्टर आए वहां पे, तो उन्होंने, बेटी ने उनको बोला कि सर इनका तो ब्लड ही नहीं बाहर आ रहा। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि सर आप ना कोई अच्छे लोग रखो यहाँ पे, है ना, ये इसकी लड़की तो नॉलेज ही नहीं है। 15 मिनट हो गया, देखो मेरा छलनी कर दिया बॉडी इसने। तो डॉक्टर साहब ने मेरे कान में बोला कि सर आप अपना बॉडी चेकअप कराओ, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ लगता है मुझे। तो सच में जब मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक हुआ, वहां पे बॉडी चेकअप हुए, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल 280 था। ब्लड कैसे बाहर आ गया, इतना गाढ़ा खून था, अगर आ भी जाता तो मेरे पापा को चाट नहीं सकता था। ये मेरा हाल था। एंड उसके बाद तो मेरे पापा की डेथ हो गई 2 दिन बाद। एंड मेरा तो बुरा हाल हो गया। और अगर मुझे सिस्टम ना मिलता, और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं दिल्ली में गया, मुझे मेरे मामा जी ने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं डायबिटिक के। मुझे शुगर थी बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें खानदानी शुगर है, जैसे खानदानी रईस होते हैं ना, हम खानदानी शुगर थी हमें। और यहाँ पे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप वहां पे आइए, वहां पे चेकअप कराइए, शायद आपकी शुगर ठीक हो जाए। और मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर हैं, मेरी नॉलेज में, मेरे सर्कल में 14 डॉक्टर हैं जो बोलते थे कि सर सारी मेरी दवा खाओ। स्किन की प्रॉब्लम थी मुझे एंड शुगर की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी, नींद आ जाए तो कराड़े बजते थे बहुत ज्यादा, साह टूट जाता था, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और मैं दिल्ली गया, मैं बताना चाहता हूँ, वहां में मैं 5 लाख रुपए कैश ले गया, एक मैं चेक बुक ले गया कि मैं डॉक्टर साहब को ऑफर करूंगा कि आप मुझे प्राइस बता दो बस क्या है, मुझे शुगर ठीक कर दो, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। एंड जब डॉक्टर साहब को हम मिले 2 दिन बाद, तो मेरी बारी आई, वेटिंग बहुत थी वहां पे। डॉक्टर साहब को मिले तो मैंने जाते उनको ऑफर कर दिया, मैंने कहा सर आप मुझे मेरी शुगर ठीक कर दो। वो बोले आप टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाए, मेडिसिन लिख दी 3 महीने की, मेडिसिन भी ले ली, हम चेक करवाई मेडिसिन, वो बोले ठीक है आप खाओ 3 महीने, फिर आना मेरे पास। मैं उठा नहीं वहां से। तो डॉक्टर साहब बोले क्या पूछना है? मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा थोड़ा नजदीक आइए नेड़े। मैंने कहा सर मैं आपको ना 5 लाख रुपए ऑफर करता हूँ, आप मेरी शुगर ठीक कर दो। अभी मुझे अपने आप पे हंसी आती है, मैंने क्या किया था। तो डॉक्टर साहब बोले आप थोड़ा नजदीक आइए। मैं नजदीक हो गया, मैंने सोचा कोई ज्यादा डिमांड करे। कहते भाई साहब मैं आपको 20 लाख ऑफर करता हूँ, मेरी शुगर ठीक कर दो। 10 साल से तो मैं ले रहा हूँ शुगर की दवाई। मेरे ना 1 मिनट में मतलब कुर्सी खिसक गई, पैरों में से जमीन खिसक गई। मुझे मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऐसा जवाब देंगे मुझे। मतलब कि मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की, जैसे जैसे मैंने दवा ली, मेरी बॉडी जो है वो
फुलावट आती रही बॉडी में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एंड एक बीमारी ठीक होती थी, दूसरी आ जाती थी, तो मेरा खाना पीना सही नहीं था। और जब मुझे मेरे कोच मिले, मेरे कोच के लिए क्लैपिंग कर दो, 2016 की बात है, 23 नवंबर सुबह 11 बजे के करीब मुझे वो मिले। एंड मैंने उनके एक ही बात पूछी कि आप मुझे कैसे ठीक कर दोगे? दुनिया के कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई बाबा जी नहीं मैंने छोड़े, आप मुझे कैसे ठीक कर दोगे? तो उनका एक ही जवाब था, सर क्योंकि मैंने अपने आप को ठीक कर लिया है। सिंपल सा उनका जो ये 2 वर्ड थे, उससे मुझे हौसला मिला। एंड उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के जब बात की, उन्होंने बोला, सर आपकी आंखों में जो अभी जो डर है ना, इसको अगर मैं खुशी में ना बदल दूं तो मैं हर्बलाइज छोड़ दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था उनमें। उन्होंने जब मुझे बताया और उन्होंने मेरा चेकअप किया, मेरा बॉडी स्कैन किया, मुझे बताया सारा कुछ मुझे समझ नहीं आया। मुझे एक बात समझ आई कि सर आपकी जो एज है ना वो 88 हो चुकी है। अगर आपकी 90 साल की एज है तो आप 88 साल की जिंदगी जी चुके हो, 2 साल बचे हैं। मुझे भी ऐसे लगता था कि मेरे 2 साल भी नहीं शायद मैं पूरे करूंगा, मेरी बॉडी इतना मेरे साथ नहीं दे रही थी। तो उनकी बातों पे मैंने विश्वास किया और आज तक करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कोच मेरे भगवान हैं एंड मुझे लाइफ मिली है उनसे। एंड पहले ही 3 दिन में मेरा 100 ग्राम वेट कम हुआ। एंड पहले महीने में मेरा 3 kg फैट लॉस हुआ और 8 महीने में मेरा 46 kg फैट लॉस हुआ। एंड अभी तक मेरा 54 kg फैट लॉस हो गया। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और टोटली जो बॉडी है वो मेडिसिन फ्री हो चुकी है। पिछले 6 साल से करीब हम मेडिसिन फ्री हैं। फैमिली बहुत अच्छी है। और फिर मेरे बाद मेरे वाइफ ने मेरा कहना माना, उन्होंने 38 kg फैट लॉस किया, बेटे ने 16 kg फैट लॉस किया एंड मेरे मदर ने 17 kg फैट लॉस किया। वाइफ को हार्ट ट्रबल थी, अच्छा खाना खाने से वो ठीक हो गए हैं, मदर ठीक हो गए हैं, मतलब सारी फैमिली फिट हो चुकी है। बहुत अच्छा लगता है, रोम रोम शुक्राना है भगवान का, मार्क्यूज का, कोचिस का, सप्लीमेंट्स का, मतलब मैं किस किस का थैंक्स करूं। और उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो लोगों ने पूछना शुरू किया, सर ये चेंज कैसे आया आपने? तो हमने बताना शुरू किया और उनको सैंपलिंग देनी शुरू की। और मेरे मन में बहुत सेवा भाव था कि मेरी फैमिली फिट हो गई है, जो खुशियां हमें मिली हैं, जो सेहत हमें मिली है, हमें लोगों को देनी है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं लोगों को ये खुशियां दूंगा और लोगों की हेल्प करूंगा, उनको अच्छी सेहत देने में, उनके ड्रीम्स पूरे करने में अपनी जी जान से हेल्प करूंगा, जैसे मेरे कोच मुझे हेल्प करते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी। एंड आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डेली बात करते हैं कि आपको आइडियल वेट पे आना है, तो आइडियल वेट पे आप कैसे पहुंचोगे। ओके, तो हैव यू हैड योर शेक टुडे? इसके बिना तो आना बहुत मुश्किल है। इस पूरी धरती पे मतलब 25 साल मैंने बहुत कोशिश की है, कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने। कोड़तुमा सुना किसने? कोड़तुमा, वो मैंने बहुत पिया है कि मेरा वेट कम हो जाए। करेले, उसका जूस, जामुन का जूस, गौमूत्र, बाल्टियां भर भर के पिए कि हमारा वेट कम हो जाए। हुआ नहीं, शेक से हुआ है। और शेक का रोल 25 पैसे है, ये लिख लो आप। और 25 पैसे जो रोल है वो ये ट्रेनिंग्स का है, 25 पैसे ही रोल आपके कोचिस का है, और 25 पैसे रोल आपके विश्वास का है। ये लिख लो बड़ा बड़ा। आपके विश्वास के बिना, आपकी विल पावर के बिना अगर आप करना चाहते हो तो बहुत इजी है। अगर कोई करना ही नहीं चाहता है, ताड़ी एक हाथ से तो बजेगी नहीं, 2 हाथ से बजेगी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा आज जो मैंने 6 साल में एक्सपीरियंस किया है, तो वो आप लिख लो जरूर। एंड वो आपके काम आने वाले हैं, आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो कि आइडियल वेट को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है, वो है आपका विश्वास। विश्वास रखेंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे। जो विश्वास करेंगे उनको सब कुछ मिलेगा। हर्बल लाइफ में बहुत कुछ है। इसमें आपको सबसे पहले कोच मिलेंगे, उसके बाद आपको अच्छी सेहत मिलेगी, ओके, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको टाइम मिलेगा, टाइम सेव होएगा आपका, ओके, एंड आपको फैमिली के लिए टाइम मिलेगा, एंड बैंक बैलेंस भी आपका होएगा बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की ब्लेसिंग मिलेंगी, आपको वेकेशंस मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। बट उसके लिए सबसे पहला क्या है? विश्वास, वो आपको रखना पड़ेगा। एंड दूसरा आप लिखो कि अपनी बॉडी को डेली आपको डिटॉक्सिफाई करना है, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने हैं।
ओके इसके लिए आपको बहुत से लोग बताएंगे जीरा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब हमने ले रखा है। आप सिंपल सा लिखो कि इसके लिए सबसे अच्छा है आपका ए फ्रेश, उसमें डालिए प्रोबायोटिक और उसमें एक स्कूप डालिए आप एलो कंसंट्रेट, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होएगी, मजा आ जाएगा आपको। एंड आपकी अगर बॉडी डेली क्लीन हो रही है तो आपका आइडियल रेट पे पहुंचना तय है, आप पहुंचोगे। ये गाड़ी चली है, दिल्ली जा रहे हैं सब, कोई 6 घंटे में पहुंचेगा, 8 में, कोई 10 घंटे में पहुंचेगा, सब पहुंच जाएंगे। आपको 6 महीने लगे, 8 लगे, 10 लगे, साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आइडियल रेट पे पहुंचना है, उसका मसल गेन करना है, उसको मेंटेन करना है। एक वर्ड लिखो कि मेंटेन, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। लोग 20 किलो वेट कम कर लेते हैं, फिर वो थोड़े से वो हो जाते हैं, हमें तो बहुत आता है, MBA वाले हो जाते हैं, हमें बहुत आता है सर, हमें मत सिखाओ, अब पता चल गया हमें कैसे करना है। गाड़ी में ब्रेक का ये तो सीखी नहीं आपने गाड़ी तो सीख ली, ओके। गाड़ी में ब्रेक होती है, पावर ब्रेक भी होती है, हैंड ब्रेक भी होती है, वो सब आपको बताना था अभी कोच ने आपको। अभिमन्यु की कहानी सुनी है आपने, चक्कर व्यू में कैसे जाना है उसको पता था, लेकिन निकलना कैसे है ये नहीं पता था। वेट कम करना है दुनिया को पता है, सैर कर लो, योगा कर लो, भूखे रह लो, सबको पता है। मेंटेन कैसे करना है, यहाँ पे आप रिजल्ट सुनते हो, किसी ने 30 kg फैट लॉस किया है, 40 kg किया है, किसी ने 70 90 kg भी लोगों ने फैट लॉस किया है, उसको मेंटेन किया है। इसके लिए मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आइडियल वेट पे पहुंच के मसल गेन करनी है, मसल जो है वो आपको हेल्प करेंगे आपको वेट, आपका आइडियल वेट मेंटेन करने में। ओके, दूसरा आप लिखिए हेल्दी ब्रेकफास्ट। या तो लोग ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, या बहुत हैवी करते हैं जिसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें जो ब्रेकफास्ट करना है वो हमें शेक का ही करना है। ओके, लिखो, शेक के बिना कोई आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है। आप मुझे पूछोगे सर पोहा ले लें, हम ब्रेड ले लें, वो ले लें, नो, कुछ नहीं लेना, आपको एक फ्रेश शेक ही लेना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। 104 कंट्रीज में लोग इसे ले रहे हैं, दुनिया के जो सेलिब्रिटीज हैं, आइडियल वेट पे सक्सेस लोग हैं, सब इसको ले रहे हैं, तो हम क्यों ना लें। ओके, तो हमें उन लोगों को कॉपी करना है जिनके जैसे बनना है। जो हमारे सीनियर डेली कोच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, दिन में 5 बार शेक पी रहे हैं, हम सोचते हैं सर 3 बार ले लूं, 2 बार ले लूं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ब्रेकफास्ट जो करना है वो आपको शेक्स का ही करना है। इसमें वो सब है जो आपकी बॉडी को चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट हैं, जितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, आपको आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सब आपको सुबह ही पूरा हो जाएगा। तो आपको ब्रेकफास्ट जो करना है, आपको हेल्थी करना है, राजों महाराजों वाला ब्रेकफास्ट करना है। और ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो 1 मिनट में तैयार हो जाता है, मैगी को 2 मिनट लगते हैं। ओके, थैंक यू। आगे आप लिखो, आपको डेली 10,000 स्टेप्स चलने हैं। मतलब कोई भी आपको हेल्दी एक्टिविटी करनी है, चाहे आप सैर करो, चाहे आप योगा करो, आप ओके कुछ भी करो, जो करो उसको कंटिन्यूसली करना है। ये नहीं है कि आज चले नहीं, अब बस चलेंगे, हफ्ते के बाद चलेंगे, बहुत चले, ऐसा नहीं करना है। आपको बॉडी को एक्टिव रखना है और अपने छोटे छोटे जो काम है वो खुद करने की आदत डालनी है। जैसे हर ग्रंथ में लिखा है कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। हर आवाज नहीं लगानी है घर में, ओ मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। उठो, आप थोड़ा हिलो जुलो, उठाओ, उसको खुद लेने की कोशिश करो, आपको बहुत मजा आएगा। जब अपने काम आप खुद करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आपकी जो बॉडी है बहुत अच्छी चलेगी एंड आप अपने आइडियल वेट पे जल्दी पहुंचोगे। ओके, आगे आप लिखो कि सबसे एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये लिखो, आपके सनलाइट, मॉर्निंग में जो सनलाइट होती है उसमें बैठना, उसमें चलना फिरना, उसमें घूमना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैंने एक वीडियो भेजी थी आपको 3-4 महीने पहले। एक 90 साल के मुझे एक पर्सन मिले थे जो बहुत फिट थे, हर्बल लाइफ में है, 90 इयर्स की एज है। एंड हमारी जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको पूछा सर आप इतने फिट कैसे हो, तो उन्होंने मुझे 3 बातें बोली, वो आप लिख लो। 90 साल के इंसान है जिसने एक युग दुनिया में बिताया है, उसने सिर्फ मुझे 3 बातें बोली कि बेटा जी मैंने 3 बातें सीखी हैं दुनिया में 90 साल में, वो मैं करता हूं। वो क्या है कि मैं गहरी गहरी सांसें लेता हूं सुबह सुबह जब लोग सो रहे होते हैं, मॉर्निंग में। ओके, मतलब कि सनलाइट से भी पहले वो उठ जाते हैं और गहरी गहरी सांसें ब्रीथिंग करते हैं, गहरी गहरी सांसें लेते हैं, और उससे क्या होगा, आपके लंग्स बढ़िया हो जाएंगे, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। जो सुबह की जो हवा होती है, 100 दवा 1 हवा उसको बोलते हैं। तो दूसरा उन्होंने बोला कि मैं मसाले कम खाता हूँ, मसाले नहीं खाता, मैं सिंपल सादा खाना खाता हूँ और हर्बल लाइफ के टोटली सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ।
ये लिखो आप। एक मेरे पॉइंट और याद आ गया कि आप लिखो कि 3 तरह के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक तो हमारे बेसिक प्रोडक्ट है, आप उसमें लिख ले बेसिक में क्या है। जैसे हम मेंबरशिप करवाते हैं, उसमें हमें ए फ्रेश शेक प्रोटीन मिलता है, या साथ में हमें शेक मिट मिलता है 7878 या 8500 में हमें ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं। ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट हैं। और एक बेसिक है कि हम कोच की सलाह ले सकते हैं, सर हम बेसिक में और क्या ऐड करें। जैसे हमारी आईडी कन्वर्ट होगी तो उसमें आप ओमेगा 3 एंड फाइबर कॉम्प्लेक्स और मल्टीविटामिन, ये 3 चीजें भी बेसिक में ही आती हैं मेरे हिसाब से। ये भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हो। अगर ज्यादा मतलब आपको मनी प्रॉब्लम है तो कम से कम ये 6 प्रोडक्ट आपको यूज करते रहना है रेगुलर। ओके, और मैं बताता हूँ इससे आपकी सेविंग होगी। एक हमारे हैं पर्सनल प्रोडक्ट, जैसे किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है उसके लिए कैल्शियम है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है उसके लिए जॉइंट सपोर्ट है, एंड कोई डायबिटीज है तो उसके लिए हमारे फाइबर्स हैं, उसमें बीटा हार्ट है हमारे पास, किसी को हार्ट ट्रबल है, एंड किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्किन बूस्टर है। तो ऐसे हमारे पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अपने कोचेस की सलाह लें आप। ओके, उनकी सलाह से ही लेना है। और तीसरे हैं अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, ये लिखो आप, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, ऑल प्रोडक्ट्स। अगर आपको कोई मतलब मनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सोचते हो कि यार डॉक्टर को देना है 5 लाख 10 लाख 70 लाख से अच्छा है तो ये सारे प्रोडक्ट ही यूज कर ले हम, तो वो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं जो सारी मेरी फैमिली यूज करती है, एंड मेरी टीम में मतलब हजारों लोग उसको यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग यूज कर रहे हैं। गुरमुख सर की टीम में भी बहुत लोग उसको यूज कर रहे हैं। वो हमारे अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए आपको 371 के लिए बोला जाता है। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। अगर कोई मनी प्रॉब्लम नहीं है आपको एंड आपको विश्वास है प्रोडक्ट्स पे, तो आप सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए। इस बॉडी से बेहतर कोई चीज नहीं है आपके पास। अच्छा ये बताओ, अगर आज मेरे वाइफ ओके हैं, मैं भी ओके हूँ, मेरे मदर ओके हैं, बेटा बहू रानी और मेरी बेटियां सब ओके, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट्स कोई महंगे हैं, एक्सपेंसिव है? नो। सेहत कभी भी महंगी नहीं होती, बीमारियां महंगी होती हैं। जैसे गुंजन मैम ने बोला था कि एक होती है इन्वेस्टमेंट, एक होता है खर्चा। जो हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी बॉडी पे, उसमें हमारी सेविंग होती है। आप बोलोगे सर सेविंग कैसे हो जाएगी? जैसे आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपने अपने घर में लॉक लगाते हो ना, आप लॉक लगा के जाते हो ना, उसमें आपकी सेविंग नहीं है, वो आप तो लगाते हो कि घर में जो सामान पड़ा है वो चोरी ना हो जाए, वो भी आपकी एक सेविंग है। ये हमने सप्लीमेंट्स क्यों यूज करने हैं कि जो हमने इतनी मेहनत से पैसे कमाने हैं वो हमारे वेस्ट ना हो जाएं, नजायज खर्चा ना हो जाए। मतलब आपने अपने किसी आस पड़ोस में देखी है, रिलेटिव्स में देखी है, किसी ने कोई लीवर का ऑपरेट करवाया हो तो 90 लाख। यहाँ पे डॉक्टर बैठे होंगे, डॉक्टर मंजू बैठे होंगे, मेरी उनसे लास्ट मंथ बात हो रही थी। उनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आ गई थी, बाहर रहते हैं वो, अभी प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उनका कम से कम 1.25 करोड़ रुपया लग गया है, अभी भी हेल्थ ठीक नहीं हुई है। तो मेरा समझाने का ये पॉइंट ये है आपको कि अगर थोड़े से पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट करके अगर हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों वेट करें कि हम करोड़ों रुपए लगाएंगे। ओके, ये समझदार जो लोग होते हैं वो इस पॉइंट को समझेंगे। ओके, तो आइडियल वेट पे पहुंचने के लिए हमें और क्या करना है, आप लिखिए स्वीट्स एंड फ्राइड्स, इनको अवॉइड करना है अभी आप, इनको अभी बिल्कुल अवॉइड करना है। ये नहीं कि सर कभी कभी खा लो, अभी तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है इन चीजों को। इनमें फैट होता है, इनके कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, इसको भी आपको अवॉइड करना है। एंड एक आप लिखिए नॉन वेज, अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपको अवॉइड करने हैं। फास्ट फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये आपको चीजें अवॉइड करनी है जिनमें ज्यादा कैलोरी होती है। अगर आपके खाने में कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिशन कम है, तो आप बड़ा बड़ा लिख लो कि ये सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर्स आपके फ्रेंड बनने वाले हैं। आप बोलोगे वो हॉस्पिटल में मेरी बहुत जान पहचान है, वो डॉक्टर मेरे फ्रेंड है, ये बोलोगे आप। एक मेरे फ्रेंड है, वो एक बार डॉक्टर साहब को उन्होंने बोला कि सर जब मुझे अटैक आएगा आप कहाँ मिलोगे? तो डॉक्टर साहब भी बहुत मतलब प्यार वाले थे, बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इमरजेंसी में मिलूंगा। मतलब आप ऐसा कुछ करो ना कि अटैक आ ही ना। ऐसे ही तो हमारा माइंडसेट हो गया कि मुझे तो आना ही आना है, आप जो सोचोगे वही होएगा। मैं पता क्या सोचता था कि मेरे फादर को शुगर है, मुझे पक्की होगी। ओके, एंड मेरी वाइफ सोचती थी कि मेरे मदर को हार्ट ट्रबल थी, मुझे भी होगी।
जो आप सोचोगे, अब हम क्या सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, हमारी जनरेशन भी ठीक हो गई है, हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बोलोगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव है। आप पॉजिटिविटी मांगोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, सोई सोई देव है लिखा है ना, सोई सोई देव है, जो आप मांगोगे वही देगा ना वो। अगर आप नेगेटिविटी मांग रहे हो तो वो नेगेटिविटी देगा, आप अच्छे लोग मांग रहे हो अच्छे लोग देगा, आप बुरी संगत में जाना चाहते हो तो वहां पे आप जाओगे। अगर आप संगत नहीं कर रहे हो तो आप कुछ संगत कर रहे हो। अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो तो आप पुअर फूड खा रहे हो, नॉर्मली सी बात है। अगर आपके खाने में कैलोरी ज्यादा है तो प्रॉब्लम आएगी, अगर आपके खाने में फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, तो लिखिए कि 90 साल की एज में भी आप यंग रहने वाले हैं एंड आपकी स्किन बहुत बढ़िया रहेगी। 90 ईयर्स में भी लोग पूछेंगे सर आप तो 60 के लगते हो, 50 के लगते हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि 90 साल की एज में भी लोग इनकम कर रहे हैं हर्बल लाइफ में, वो मोहताज नहीं है। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि एक चश्मा बनवाना होता है तो फादर और मदर बच्चों को बोल रहे हैं बेटा मेरा चश्मा बना दो, बेटा बोलता पैसे नहीं मेरे पास, गुंजाइश अगले महीने देखेंगे। मोहताजी मतलब मरने के बराबर होती है मोहताजी। भगवान किसी को मोहताजी ना दे, बट उसमें गलती हमारी है कि हमने अपने आप का ध्यान नहीं किया एंड हम दुनिया में ग्रस्त रहे, तो वो गलतियां हमने बहुत की हैं, आपको ऐसी नहीं करनी है। ओके, एक आप लिखो कि स्ट्रेच योर सेल्फ डेली। स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, सारा दिन बैठे नहीं रहना। आपने अभी कुछ खाया है तो आपको उठना है, थोड़ा सा चलना है, फिरना है, ताकि वो नीचे उतरे। ओके, एंड सारा आपको वो डाइजेशन सिस्टम आपका बढ़िया हो, तो आपको अब स्ट्रेचिंग करनी है। सुबह जल्दी उठो आप, अगर उठना ही आपको 8:30 बजे है, 9 बजे आपकी क्लास है, नहाने का टाइम नहीं है, नाइट शो में बैठते हो आप, बाल भी अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो स्ट्रेचिंग कब करोगे आप लोग? आपको सुबह जल्दी उठना है, 2 घंटे अपने आप के लिए निकालिए डेली। सोने से पहले ही अपनी तैयारी कर लो कि सुबह हमने किया। ये मैंने शर्ट डालनी थी ना, इस पे मैंने एक बटन लगाया है, ये वाला, ये मैंने रात को ही लगा दिया था, क्योंकि जब शर्ट पहन के बटन लगाते हैं वो फिर टेढ़ा मेढ़ा लगता है। सामने रखा, बटन लगाया, पता है कि सुबह यही शर्ट डालनी है मुझे, ये मैंने पगड़ी बांधी हुई है, रात को डिसाइड हो गया था यही डालनी है मुझे, पहननी है मुझे पगड़ी, यही बांधनी है। तो सोने से पहले आप डिसाइड कीजिए कि मुझे कल क्या पहनना है, कल दोपहर में क्या खाना है, सुबह तो शेक पीना है, रात को भी शेक पीना है, तो सारा ये आपको प्लान करना है। ओके, आइडियल वेट के लिए और आपको क्या करना है कि प्लान योर चीट मील्स। कभी कभी आपको बाहर जाना पड़ता है, घर में शादी आ गई है, कोई एनिवर्सरी आ गई है या कोई बर्थडे पार्टी होनी है, तो आपको पूरा दिन शेक्स पीने हैं, रात को भी वहां पे शेक पी के ही जाना है आपको। आप शेक पी के जाओगे तो आपको हंगर कम होएगा, वहां पे खाने की क्रेविंग्स कम होएगी, आपका पेट भरा भरा रहेगा। और मैं बताता हूँ कि जब बाहर जाते हो ना, आप सबको पता है कि हर्बलाइफ ले रहे हैं, तो लोग आपकी प्लेट में ध्यान रखते हैं खा क्या रहे हैं। तो जब वहां पे आप ओवर ईटिंग करते हो, उनके सामने कुछ ऐसा वैसा खाते हो, तो लोग कहते हैं छोड़ यार, इसका थोड़ी होना है, इससे तो होना नहीं और होना भी नहीं। ओके, तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक आप लिखो, लास्ट पॉइंट है, कभी ये नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, सेहत के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आपको बताता हूं, जितने लोगों ने मुझे 6 साल में बोला है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और वाकई उनके पास टाइम नहीं था। कोई 6 महीने में चला गया भगवान के पास, कोई 2 साल में चला गया, कोई 3 साल में चला गया है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि वो क्यों बोलते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि है ही नहीं टाइम। उनकी लिखी ऐसी हुई थी भगवान ने, तो हम क्या, हम भगवान थोड़ी हैं। तो कभी भी ये बात नहीं बोलनी है कि मेरे पास सेहत के लिए टाइम नहीं है। अब अगर ऐसा बोलोगे तो ये सच होने वाला है, ये लिख लो आप। तो एक जोक है ना कि भगवान को डेली याद करा करो, नहीं तो किस दिन भगवान ने याद कर लिया ना तो प्रॉब्लम हो जानी है आपको। ओके, तो ये अगर आप पॉइंट्स आप करोगे तो आप आइडियल वेट को जल्दी अचीव कर पाओगे, उसको मेंटेन भी कर सकोगे। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको जूम सेशन में टिके रहना है और अपने आइडियल वेट पे काम करना है। जब तक आपके जो मसल्स हैं वो आपकी फैट से 1.5 गुना नहीं होते हैं, अपने कोच को नहीं छोड़ना है, सिस्टम को नहीं छोड़ना है। मतलब जब तक आप खुद पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, आपको बोलना नहीं आ जाता, आपके खुद के जूम सेशन नहीं शुरू हो जाते, आपको ये सेशन नहीं छोड़ने हैं, पूरा सिस्टम को सीखना है। और इस कब से लिए आपको अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना होगा। ओके, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका मन स्ट्रांग है, अगर सुबह आपकी बेल बजी है
ओके। आपने अलार्म लगाया, बेल बजी और आपके मन ने बोला छोड़ यार अभी 10 मिनट और सोते हैं, तो आप लिख लो कि उस दिन आप हार चुके हो, आपका मन जीत गया है, वो दिन आपका खराब होने वाला है। लेकिन आप अगर अलार्म से पहले उठ गए हो या अलार्म बजते ही आप उठ गए हो और आपने सिस्टम को संभाल लिया है, जो प्लान किया था उसके ऊपर चलते हो, तो आपकी आत्मा की पावर बहुत स्ट्रांग है। अपने आप को खुद एनालिसिस कर सकते हो, अपनी आत्मा की पावर पे काम करना है। उसके लिए डेली अपने गोल्स के लिए सोचिए, 20-30 मिनट भगवान का नाम लीजिए, माता पिता की सेवा करें। माता पिता से बड़ा देवता दुनिया में कोई नहीं है, लिख लो आप। अनलकी हैं वो लोग जो गुरुद्वारे में लंगर लगाते हैं, मंदिर में लंगर लगाते हैं, घर में माता पिता को चश्मा नहीं बना के दे रहे, ठीक है, उनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा, वो लोग अनलकी है, वो भगवान से कोसों दूर है। कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, वो अपने हाथ में है। अगर आप ये छोटे छोटे पॉइंट समझोगे, बड़ों की इज्जत करोगे एंड हमेशा पॉजिटिव बातें करोगे एंड उन लोगों में रहना आपको जिनके जैसा आपको बनना है। नेगेटिविटी से थोड़ा सा अगर आप गुरेज करोगे, मतलब जिस सभा में कोई भगवान की बात नहीं हो रही, कोई हेल्थ की बात नहीं हो रही, कोई पॉजिटिव बातें नहीं हो रही, वहां पे आपका काम क्या है? वहां से उठो, साइड ले लो, अकेले अच्छे हो। नानक मन मुखा नालो टुट्टी भली। जिन लोगों से में आपको बैठने से आपकी एनर्जी कम हो रही है या आपको खुशकी आ रही है, जो लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा सा स्माइल करो, उनको बोलो सर मैं अभी आ रहा हूँ, काम है, तो साइड ले लो। आप अपने प्लान्स पे काम करो। आप छोटे छोटे काम आपको करने हैं और कभी भी इस सिस्टम को क्विट नहीं करना है, इसके साथ जुड़े रहना है। ये मतलब ये आप समझो कि जैसे संगत मिलती है ना कर्मों से, ऐसे ये सिस्टम मिलते हैं। बड़े 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 भाग चाहिए इसके लिए, बड़े कर्मों से सिस्टम मिला आपको। कभी भी नाराज नहीं होना है, कभी भी मन मुटाव नहीं करना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी है, कभी भी अपने को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप यूनिक हो। ना आपकी जैसी आवाज किसी के पास है, ना आपकी जैसी आंखें किसी के पास है। आप अपने को ध्यान से देखो, आप बोलोगे कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा बना के भेजा है, बट इसको खराब किसने किया है? हमने खुद ही किया हुआ है। इसको ठीक कौन करेगा? हम ही करेंगे, अपनी कोच की हेल्प से करेंगे। तो छोटे छोटे काम है जो आपको करने हैं। और दुनिया में 97% लोग ऐसे हैं जो फेलियर हो जाते हैं क्योंकि उनके जो सराउंडिंग लोग होते हैं वो उनकी ज्यादा सुनते हैं और पॉजिटिव लोगों की कम सुनते हैं। 3% लोग कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, 2 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो लास्ट आप लिख लो कि आपको कभी भी मिसगाइड नहीं होना है, ना ही किसी को करना है मिसगाइड, और ना ही किसी से मिसबिहेव करना है। 2 बातें आज मेन लिखो आप, जो मैं आपको बताना चाहता था। कभी भी मिसगाइड नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में जितने भी लोग आपके आगे पीछे हैं वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रॉन्ग होती है। ओके, तो मिसगाइड नहीं होना आपको। एंड दूसरा, मिसबिहेव नहीं करना है किसी से भी, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। अगर कोई मिसबिहेव करता है तो आपको चुप रहना है, शांत रहना है। शांति बहुत बड़ी चीज है, शांति आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। मनमोहन सिंह है ना, अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक मुझे वर्ड याद है, वो बोलते थे साइलेंट एंड स्माइल। अब उनका कभी फेस देखो, स्माइलिंग होती है एंड साइलेंट ही रहते थे ज्यादा वो। तो बहुत सक्सेस करोगे आप लोग एंड अपने एडिवेट पे काम करो, लोगों की हेल्प करो, माता पिता की सेवा करो। ये मेरा आज का पार्ट था और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट को कि वो आपके रिजल्ट शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट है। रिजल्ट शेयर सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि बोलता है कि मेरा 2 kg फैट लॉस हो गया है, मेरी सांस अच्छी हो गई है। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी की बॉडी को ठीक करना। भगवान के नाम के बाद अगर कोई पुण्य है वो किसी की हेल्प करना है, माता पिता की सेवा करना है। तो जरूर आपको ये पार्ट में एक्टिव रहना है, अपने रिजल्ट शेयर करने हैं। कोई नहीं पता कि आपका रिजल्ट सुन के किसी की लाइफ चेंज हो जाए। दिन में कम से कम 10 बार इसको किया कीजिए, लोगों को बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है, मेरा इतना फैट लॉस हो गया है। ये आपको बताना है। कोई मसल गेन के लिए आए हैं, वेट गेन के लिए, तो आपको भी बताना है कि मेरे मसल गेन हुए हैं। ये आपको लोगों से बात शेयर करनी है। जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिया किच कही है। कुछ बोलना है, कुछ सुनना है। ओके, अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। अगर छोटे छोटे काम करोगे जिंदगी चेंज होएगी। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट शेयर करवाएंगे हमारे होस्ट। थैंक यू वेरी मच। ਕਿ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 100% ਆਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ।
जो भी रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं प्लीज अपना साइट को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं मीना फ्रॉम संगरूर। ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਰਕਤ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਆਲਤਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਨ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਆ, ਮਸਲ ਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਕੋਚਿਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। Good morning, everyone. Good morning. Hello. Yes, ma'am, you can share. Good morning, everyone. मेरा नाम चरणजीत कौर है। मैं धनौला तो बिलोंग करती हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ मैंने अपना 24 kg weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ health issue remove ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। Very good. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੇਟੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15 kg weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਚ ਰਿਧੀ ਮੈਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੌਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुनीत भारद्वाज है, धनौला का रहने वाला जी। पिछले 4 महीने तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेके मैं अपना 16 kg फैट लॉस कर लिया। लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बहुत एक्टिव हो गया जी। कोई सुस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह 4 बजे उठते हैं, एक्सरसाइज जाते हैं, भजते हैं, लड़ते हैं। मतलब 43 साल ਦੇ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ 18 ਸਾਲ ਦੇ। बड़ा आनंद आ रहा है सर, बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है सुनीत जी, क्या बात है। आपका तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है एंड मैं प्रे करूंगा कि सबका रिजल्ट आपके जैसा है, जैसे आप एक्टिव हो गए हैं 3-4 महीने में ही। एंड बहुत बढ़िया लगता है और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी सारे नेक्स्ट लेवल प्राप्त करने वाले हो एंड सारी टीम बहुत बढ़िया कर रही है। एंड नेक्स्ट शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गजदीप कौर है, मैं बिलासपुर ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ 20 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਟਰਸਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब 20 kg फैट लॉस होएगा तो 20 kg आपकी जो बीमारियां हैं वो भी आउट होंगी और 20 kg आपकी एनर्जी बढ़ेगी। इसके लिए क्लैपिंग कर दो। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट है, बहुत अच्छा कर, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वेट करते हैं।
कंचन मैम आप शेयर कर सकते हैं, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कंचन है, मैं बेटा से बिलोंग करती हूँ। मैं 3 दिन ऐसे 12 किलो वेट लॉस करके अपने वेट से भी मसल नहीं आऊंगा, तो मैं बहुत ज्यादा से शुगर से गोली टेंशन अब कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास रिजल्ट बहुत ज्यादा है पर टाइम बहुत कम है, तो जो लोग रह गए हैं वो अपना 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें जरूर भेजें एंड अपने स्टेटस पे लगाएं, लोगों की हेल्प करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्रमोशंस एंड गिफ्ट चल रहे हैं उसके पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप 7000 वॉल्यूम लगातार 3 महीने करते हैं तो आप एक बहुत ही सुंदर सा लैपटॉप प्राप्त करेंगे अपने कोचेज की तरफ से। एंड अगर आप 5000 वॉल्यूम करते हैं तो बहुत सुंदर आपको एक मोबाइल सेट मिलने वाला है। अगर आप 3000 वॉल्यूम करते हो लगातार 3 महीने तो मिक्सी ग्राइंडर आपको मिलने वाला है। और अगर आप 10,000 वॉल्यूम करते हो लगातार 3 महीने तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा और 1 डे की आपको वेकेशन मिलेगी सब फेस्टिव मेंबर के साथ, और उनके साथ आपको लंच पार्टी भी मिलेगी। बहुत अमेजिंग आने वाले जो दिन है, हमारे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आपको लगे रहना है, टिके रहना है, लोगों की हेल्प करनी है, अपने आप पे काम करना है। फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। एंड नवंबर में जो है हमारी लंच पार्टी है, उसके लिए आपको सेक्टेड रहना है, विद फैमिली आपको पहुंचना है, अपनी टिकट्स पहले बुक करवानी है। एंड थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके सबके लिए कामना करते हैं सारे बहुत बड़े अच्छी सी स्माइल कर दो और क्लैपिंग कर दो सारे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।